اور آئیے اب بڑھتے ہیں ان کی جانب جو آج مسند شاہی پر براجمان ہیں، اور وہ اپنے آپ میں خود ایک بادشاہ ہیں. ان کے لیے کیا کہا جائے، نام ہی فیاض ہے اور نام ہی کافی ہے. اور جہاں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے. محترم جناب فیاض ورتک صاحب، فیاضی کا ایک بالکل جیتا جاگتا جو ہے وہ مرشح ہے. صاحب دیوان، شاعر، اداکار بھی ہیں. اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں یہ کوئی ٹی وی پہ اور یو اے ای میں بھی، اور بہت جانے پہچانے ایکٹر ہیں. زیادہ تر ولن کا رول کرتے ہیں. آج کیسے ہیرو بنے ہیں یہ پتہ نہیں، کچھ گفتاری کا محل میں ان کی فطرت میں ہے. بلا شبہ آپ صاحب فہم و ادراک و فضلہ سنجی آپ کی جو ہے وہ بالکل آپ کی طباعت کا، حسن طباعت کا حصہ ہے، اور فہم ادراک دانشور ہیں. کوئی بھی ان کی شاعری کو سنے اس کے بعد ان کی بات کا معترف ہوگا کہ زندگی سبحان اللہ شاعری میں خاص دوستوں میں سے تھے. امجد خان صاحب ان کے خاص دوست تھے، اور انہوں نے تو فلم کی آفر بھی کی تھی، لیکن انہوں نے بنا کر دیا تھا کسی اپنے نوکری کے سبب کے. جا نہیں سکتے تھے اتنے طویل عرصے کے لیے. والد صاحب کی اجازت نہیں تھی. والد صاحب کی بھی اجازت، کیسے ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا کیا کر رہے ہیں. اور سارے رنگ شاعری میں جھلکتے ہیں. ان کی شاعری ان کی زندگی کے تجربوں کا نچوڑ، جیسے کہ ہر شاعر کی ہوتی، لیکن ان کے زیادہ تجربے ہیں کیونکہ انہوں نے پردیس بھی کاٹا ہے اور ابھی تک کاٹ رہے ہیں، اور دیش کا بھی. تو ساری، جیسا کہ ریحانہ روحی صاحبہ نے کہا تھا کہ جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں ان کے تجربات الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، اور وہی بات یہاں پر بالکل سچی ہے. فلم، ٹی وی اور اسٹیج کے جانے مانے فنکار ہیں. اپنی فنی صلاحیتوں کا لوہا خوب اچھی طرح منوا کے گاڑ چکے ہیں سب جگہ پر، اور اب نکلنے والا نہیں ہے وہ. اور اعتراف اعزازات اور کمال فن دنیا بھر سے آپ کو نوازا جا چکا. کسی بھی مشاعرے میں آپ کامیابی کا ضامن ہے. میں انتہائی ادب سے گلابی گلابی ہوئے بیٹھے ہمارے صدر محترم جناب فیاض ورتک صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں. آج کی تقریب جو محترمہ شاہین برلاس صاحبہ کی مجموعہ کلام جو ہے اس کے حوالے سے ترتیب رکھی گئی تھی، تو اس پر اپنی روشنی بھی ڈالیں اور خطبہ صدارت بھی عطا فرمائیں. سلسلہ در سلسلہ ہے درد کی زنجیر کا، کس سے پوچھوں کیا ہے منشا کاتب تقدیر کا. چاند سورج کو، ستاروں کو سلام ہے، وطن تیرے نظاروں کو سلام. ہر طرح کی شاعری اس میں، غزل، نظم، جو ہے مناجات، منقبت، اور کوئی بھی موضوع لے لیجیے اس پہ بالکل بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ شاعری کر دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے میں ملتمس ہوں تشریف لائیں محترم فیاض ورتک صاحب. آواز بہت شکریہ. استاد صاحب. قائم ہے اہل ذوق سے بزم سخن ابھی. کیا بات ہے. قائم ہے اہل ذوق سے بزم سخن ابھی. باقی ہے اس دیار میں ارباب فن ابھی. پائے گی بزم تجھ سے فروغ سخن ابھی. پہچاننے لگی ہے انجمن ابھی. شاہین صاحب، یہ آپ سب کی نظر ہے، اور آپ کی تو قائم ہے اہل ذوق سے بزم سخن ابھی. باقی ہے اس دیار میں ارباب فن ابھی. پائے گی بزم تجھ سے فروغ سخن ابھی. پہچاننے لگی ہے تجھے انجمن ابھی. اور لمحہ خیال میرے لیے یہ سب سے پہلی بات اعزاز کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے جس طرح عرض کیا کہ خواتین کے بارے میں بڑی تفصیل سے محترمہ ریحانہ صاحبہ نے بتا دیا، اور میں نے جب سے ان کو سنا ہے تب سے اب تک میری نظر میں کیونکہ میں نے خواتین کو بہت پڑھا ہے، اور میں نے ادا جعفری صاحبہ کی وہ داستان پوری سنی ہے ان کی اپنی زبان میں. سلیم بھائی کی یہ خواہش تھی کہ کاش ایک بار ادا باجی تشریف لائے دبئی کے مشاعروں میں. اور اس کے بعد جب یہ سلسلہ نکلا تو پروین شاکر، اور اس کے بعد تو جب تلوار ہاتھ میں لی محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ نے اور ایک سما باندھا. اب ان کی حیثیت ایک باپ کی ہے، ایک باب ہے وہ. تو خیال
जी, लम्हा ख्याल के ख्यालों से, लम्हा ख्याल के ख्यालों से जो एक परतू उभर कर सामने आता है, वो एक ऐसी शायरा हैं जिनकी आवाज में एक पुख्तगी है और एक तरन्नुम है और एक यानी करिया 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 करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, वो अपने नाम के आकाबी पंजों में मज़ामीन पकड़ पकड़ करके जाती है और हमें सुनाती हैं। और शाहीन साहिबा एक मुतबर आवाज है। मैंने जहां तक इनको सुना है, जहां तक इनको पढ़ा है, जहां तक इनसे गुफ्तगू हुई है, जहां तक इस शायरी पर हर्षित है, मैंने इनको एक मुकम्मल नुस्वानियत में डूबी हुई शायरा पाया है। गो की नुस्वानियत का भरपूर इजहार परवीन शाकिर साहिबा ने किया था और उनकी वजह से लोगों को हौसला हुई, खवातीन को, और ये सिलसिला अब ऐसे निकल पड़ा है कि आप रुकने का नाम नहीं देता। और हमारे लिए एहसास की बात है कि हमारे लिए ये एहसास की बात है कि हम इस दौर में जिंदा है कि जिस दौर में किश्वर नाही साहिबा और जिस दौर में परवीन शाकिर साहिबा और जिस दौर में रेहाना रूही साहिबा और शाहीन बरला साहिबा और फिर शाहीन साहिबा का जो ताल्लुक इस घराने से है, ये 2011 की बात है। वहां पर एक मुशायरा था बहरीन में, तो जब हर शायर आता था, सब तकरीबन काफी शायर 15-16 शायर आते गए, कोई आवाज नहीं आ रही थी दाद की। तो जब मेरी बारी आ गई तो मैं हाजिर हुआ। उस मुशायरे की सदारत मुर्तजा बरला साहब फरमा रहे थे और दुबई में भी उनसे मुलाकातें हुई थी। तो मैंने कहा कि शायरात और शुआरा हजरात सुनिए कि मैं जिसकी किसी की आवाज नहीं आ रही थी, मेरी आवाज आ रही थी, दाद में बह रहा था। मैं पठान आदमी हूं, उधार देता हूं, सूद समेत वापस करता हूं। आप तो दाद देंगे, लेकिन सामाईन ये याद रखिए, सामाईन ये याद रखिए कि मैं टाई सूट में मलबूस हूं और मैंने पगड़ी नहीं बांधी है, लेकिन मैं पिस्तौल रखता हूं। और उसके बाद जो मुशायरा उठा, और जो देख के तो हमें थोड़ा सा ये होता है कि फील हो रहा है कि हम भी पठान होते। हर इंसान दिल से पठान होता है अगर वो दिल वाला हो तो। फिर जब मुशायरा खत्म हुआ, आज तो आप नहीं हैं, आज तो मुशायरा जब खत्म हुआ तो बाबा मुर्तजा बरला साहब ने फरमाया, खान भाई, खान बेटा, हमें तो आपने दाद दिलाई, लेकिन खुद दाद बटोर के लिए है। नहीं भूलता। और ये मैंने जिस गजल की फरमाइश की थी मोहतरमा रेहाना रूही साहिबा से, उसकी वो रदीफ थी। मेरा माइक नहीं, रेहाना साहिबा का माइक काम नहीं कर रहा था, जो उनको नहीं सुना सकी, तो मैंने जो आपने की थी। लेकिन मैंने उस वक्त उस जमीन में इसमें ये गजल कही थी, वो उसकी रदीफ थी, गजल कह रही हूं मैं। तो मैं इस मौके का फायदा उठा के 35 साल पहली पुरानी शायर से गजल सुनाऊंगा कि मैं क्या हूँ सोचता हूँ, मैं क्या हूँ सोचता हूँ, गजल कह रहा हूँ मैं। ये गजल शाहीन साहिबा की प्रोग्राम के अलावा मुहतरमा रेहाना रूही की भी नजर है कि मैं क्या हूँ सोचता हूँ, गजल कह रहा हूँ मैं, दिल हूँ कि दिलरुबा हूँ, गजल कह रहा हूँ मैं। क्या बात है। मैं क्या हूँ सोचता हूँ, गजल कह रहा हूँ मैं, दिल हूँ कि दिलरुबा हूँ, गजल कह रहा हूँ मैं। नाजो अदाओ हुस्न से रग़बत न थी मुझे, नाजो अदाओ हुस्न से रग़बत न थी कभी, कितना बदल गया हूँ, गजल कह रहा हूँ मैं।
واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناز و ادا و حسن سے رغبت نہ تھی کبھی، کتنا بدل گیا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں. دل میں لگا دی عشق حقیقی نے ایسی آگ، کہ دل میں لگا دی عشق حقیقی نے ایسی آگ، شعلہ اگل رہا ہوں غزل کہہ رہا ہوں غزل میں. کہہ رہا ہوں میں. واہ 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 واہ. شعلہ اگل رہا ہوں غزل کہہ رہا ہوں، غزل کہہ رہا ہوں. واہ واہ واہ. غزل کیا. اور شعر ملاحظہ فرمائیے روحی صاحبہ کہ دامن سے لے کتاب غریباں ہے ایک حال، کیا کہنے. دامن سے لے کتاب غریباں ہے ایک حال، دھجی بنا ہوا ہوں غزل کہہ رہا ہوں بھائی کیا کہنے. جی بنا ہوا. واہ. بہت شکریہ. کہ دامن سے لے کتاب غریباں ہے ایک حال، دھجی بنا ہوا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں. اور مالو متاؤ زیست، مالو متاؤ مالو متاؤ زیست، مالو متاؤ زیست، مالو متاؤ زیست لٹا کر میرے حضور، کیا مطمئن ہوا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں. مالو متاؤ زیست لٹا کر میرے حضور، کیا مطمئن ہوا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں. پھر ملاحظہ فرمائیے کہ بس تھوڑی دیر چین سے بیٹھو جناب من، بس تھوڑی دیر چین سے بیٹھو جناب من، تضمین کر رہا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں. کر رہا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں تضمین. اور ماضی کھلا ہوا ہے نگاہوں کے سامنے، ماضی کھلا ہوا ہے نگاہوں کے سامنے، قسمت کا فلسفہ ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں. قسمت کا بہت بہت شکریہ کہ قسمت کا فلسفہ ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں. اور شعر آپ سب کی نظر ہے کہ دانشوران اہل ادب جانتے ہیں خوب، دانشوران اہل ادب جانتے ہیں خوب، آئینے وفا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں. دانشوران اہل وفا جانتے ہیں خوب کہ آئینے وفا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں. اور انسانیت کے قتل کا کیوں کر اثر نہ ہو، کہ انسانیت کے قتل کا کیوں کر اثر نہ ہو، ایک درد آشنا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں. ایک درد آشنا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں. اور بہت شکریہ. ایک درد آشنا. اور ایک شعر ہے اپنے پٹھانیت پر کہ تیغ و تبر کا کھیل تھا آساں میرے لیے، تبر کا کھیل، تیغ و تبر کا کھیل تھا آساں میرے لیے، یہ کس کی بد دعا ہوں غزل کہہ رہا ہوں. کیا کہنے اس کی بد دعا. کچھ کہہ کے کیا بات ہے. بہت اچھے ماشاء اللہ. یہ صدارتی شعر ہے. کیا بات. آ گیا. تیغ و تبر کا کھیل تھا آساں میرے لیے، کیا کہہ رہے ہیں. کس کی دعا ہے. یہ کس کی بد دعا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں. اور ماضی کی تلخیوں نے ہر ایک سے کیا ہے دور، ماضی کی تلخیوں نے ہر ایک سے کیا ہے دور، سب کو بھلا رہا ہوں غزل کہہ رہا ہوں. بھلا رہا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں. اور فیاض شام ہی سے میرا دل نڈھال ہے، کہ فیاض شام ہی سے میرا دل نڈھال ہے. لیکن اس وقت نہیں ہے، یہ بس مقطع ہے اس زمانے کا کہ فیاض شام ہی سے میرا دل نڈھال ہے، بجھتا ہوا دیا ہوں غزل کہہ رہا ہوں. بجھتا ہوا دیا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں کیا. آپ تو جلتا ہوں. کیا بات ہے. آپ جلتا ہوں. بہت بہت شکریہ.
یہ منیب فاروق صاحب بہت پرانے لکھاری تھے، اس میں مشرق اخبار میں بھی لکھتے تھے، تو جب وہ یہاں مہمان خصوصی تھے میں نے یہ غزل پڑھی کہ میں کیا ہوں سوچتا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں، دل ہوں کہ دل ربا ہوں غزل کہہ رہا ہوں میں۔ انہوں نے کہا آپ دونوں ہیں، انہوں نے کہا آپ دونوں ہیں۔ بہت بہت شکریہ آج کی فیاض بھائی، سر وہ ترنم سے ایک غزل لازمی ہے آپ کی۔ ترنم والی غزل تو میں دیکھتا ہوں، اگر لایا ہوں تو میں ضرور پڑھوں گا۔ ہم نے جب بھی غزل سرائی کی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ہم نے جب بھی غزل سرائی کی، دل کے زخموں میں ہم نوائی، ہم نے جب بھی غزل سرائی کی، دل کے زخموں میں ہم نوائی کی، ہم نے جس کی بے ہم نوائی کی، اس نے ہم ہی بے وفائی لمبی بے وفائی کر دی اس نے۔ جانا کہ بس تمنا تھی، جانا کہ بس تمنا تھی، ہم وصل جہاں ہم نے کب خواہش خدا، بہت اچھا ہے، کہ بس تمنا تھی، ہم نے کب خواہش خدائی کی، رنگ پھل بھر میں جو بدلتا ہے، رنگ پھل بھر میں جو بدلتا ہے، ایسے ظالم سے آشنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے ظالم سے آشنائی کی۔ اور شعر ہے کہ ہم کو جب قتل گاہ لے آئے، ہم کو جب قتل گاہ لے آئے، سب نے قاتل کی رہنمائی، ہم کو جب شکریہ ہم کو جب قتل گاہ لے آئے، سب نے قاتل کی رہنمائی کی، رسم الفت نبھا رہا ہوں میں، رسم الفت نبھا رہا ہوں میں، نہ شکایت نہ بے وفائی کی، رسم الفت نبھا رہا ہوں میں، نہ شکایت نہ بے وفائی کی، وہ ہمیں چھوڑ کر گئے فیاض، وہ ہمیں چھوڑ کر گئے فیاض، ہم نے کب خواہش خدائی کی، ہم نے کب خواہش خدائی کی، ہم نے جب
हमने जब भी गजल तराई की, दिल के जख्मों में हम नवाई की। क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, शिकागो, कामरान साहेब, डॉक्टर अफजाल साहेब, और खासकर साहिबी जो निजामत, साहिब निजामत है, साहिबा निजामत है, उनकी खूबसूरत निजामत भरपूर, जो इस तरह की मुशायरे पर अपना पकड़ रखती है। आप इसको शेरी निजामत कह सकते हैं, शेरी निजामत, बिल्कुल मुकम्मल शेरी निजामत। और जिस तरह मैंने आपकी गजल सुनने की बार बार फरमाइश की, लेकिन नेट चली गई थी, उसी तरह मैं हमेशा मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी को और ये सिलसिला इसी तरह मोहब्बतों का जारी रहे। 43 साल से मोहब्बतों से जुड़ा हुआ हूँ। सलीम जाफरी साहब के साथ 10 साल काम किया है। वो शख्सियतें मजरू सुल्तानपुरी, खुमार बारा बंकी साहब, फयाज के साथ मुशायरे कर लिए हमने तुमने जिनके साथ मुशायरे पढ़ लिए, सोच नहीं सकते लोग, है ना, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ। पहले सरदार और मोहतरमा जोन एरिया साहिब मेरे पीछे बैठे हुए थे गाड़ी में, और अगली सीट पर बैठे हुए थे अली सरदार जाफरी साहब और सलीम साहब थे, और एक पीरजादा कासिम साहब थे। तो मैंने एक मिसरा पढ़ा, जोन की बड़ी मशहूर गजल थी, मैंने उसमें एक मिसरा पढ़ा और जोन भाई ने पीछे से मुझे पकड़ लिया, अरे सलीम भाई पहले बार किसी से मुलाकात करवाई है। तो उस दौर को याद करना, और फिर जब रेहाना साहिबा को देखता हूँ, पूरा दौर मेरे आंखों के सामने एक फिल्म। बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस एजाज के लिए। असल में ये सारे सुदूर थे मेरे, और खासकर रूही साहिबा और अली नासिर, सैयद नासिर अली साहिब तो हमारे बड़े मुहतरम हैं। उनके कई प्रोग्रामों में पेशावर में मुझे बुलाया है, मुशायरों में, प्रोग्रामों में, और टेलीविजन की 74 के जमाने से मेरा उनका ताल्लुक है, जब मैं पीटीवी का पेशावर का हीरो था जिस जमाने में। अभी तो जीरो हो गया। नहीं, तो सचमुच के हीरो थे, तुम सचमुच के हीरो थे, वही पठान हीरो, जबरदस्त खूबसूरत तरीन आदमी, वो मेरी आंखों में देखा है। और जब फिल्म वाले आ गए तो मेरे वालिद साहब ने कहा फिल्म में काम करोगे तो गोली मार दूंगा, बंदूक भरी हुई थी। उसके बाद मुझे सामने, लेकिन ये ऐसा कीड़ा है कि ये मरता नहीं है। कोई टेलीविजन वाले को अल्लाह वो किसी और तरह हो जाता है जी। और तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों को, आपका कलाम सब सुना, बहुत मुझे सुनने में ज्यादा लुत्फ आता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको आबाद रखे और दुनिया में वो है उसकी सेहत। अल्लाह आपको सेहत के तौर पर किसी का बहुत शुक्रिया फयाज वर्दिक साहब, हमारे शाहीन बरनाज साहिबा, बहुत बहुत मुबारक हो, दिल की गहराइयों से मुबारक हो। और जो मुबारक के कते लिखे थे वो पढ़ नहीं सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत नाज़रीन और सामीन कराम जो लोग हमें देख रहे हैं लाइव फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी बाद में हमें देखेंगे, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज की तकरीब बनाई गई लम्हा ख्याल मजमुआ हमारी मोहतरमा शाहीन बरलास साहिबा की तकरीब रुनुमाई लम्हा ख्याल की यहाँ मुनक़िद की गई। हम शायर अदीब इंटरनेशनल और बज़्म अरबाब सुकन शिकागो के ज़ेर एहतमाम, जिसकी सदारत फरमा रहे थे मोहतरम जनाब सैयद मोहतरम फयाज वर्दिक साहब से। इसके मुंतज़िम आला और बानी सरपरस्त जनाब कामरान उस्मान साहब कराची पाकिस्तान से जो सरपरस्तबानी है हम शायर अदीब के। माविन रहे हमारे साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर अफजल रहमान अफसर साहब शिकागो से बज़्म अदब शिकागो के बानी भी रहे हैं और सरपरस्त भी हैं। सदर मोहतरम जनाब
मोहतरमा शहनाज रिजवी साहिबा कराची पाकिस्तान से, और उनके साथ साथ जो लोग हमारे साथ इस मुशायरे में जुड़े उसमें हमारे साथ शामिल हुए मोहतरम जनाब शफीक मुराद साहब हमारे साथ रहे, उनके साथ साथ हमारे साथ शामिल हुए जनाब नासिर अली सैयद साहब अमेरिका से, फातिमा जहरा जबी साहबा कनाडा से, मोहतरमा रेहाना रूही साहिबा कराची पाकिस्तान से, उनके साथ साथ हमारे साथ शामिल रहे मोहतरम अहमद अब्दुल हकीम साहब शिकागो अमेरिका से, डॉक्टर सैयद तकी हैदर साहब अमेरिका से, आमिर बेग साहब जुड़े हमारे साथ अमेरिका पिस्काटवे न्यू जर्सी अमेरिका से, शमशाद शाह साहब नागपुर इंडिया से हमारे साथ रहे, मोहतरमा शाहीन रिजवी साहिबा लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी, चौधरी मोहम्मद नवाज किलियाना साहब हमारे साथ जुड़े लेकिन कुछ देर के बाद सिलसिला मुनक़ता हुआ, मोहतरम जनाब शुजाउल जमा खान शाह साहब रियाद सऊदी अरब से, मोहतरमा शाहिदा उरूज साहिबा कराची पाकिस्तान से, मोहतरमा सीनी बरला साहिबा बरतानिया से, मोहतरमा ताहिरा रिदा साहिबा शिकागो अमेरिका से, मोहतरमा मुमताज मलिक साहिबा पेरिस फ्रांस से। उसके अलावा अगर कोई नाम मुझसे रह गया हो तो मैं माफी चाहूंगी। ढेर मुबारकबाद पेश करती हूँ मोहतरमा शाहीन बरला साहिबा का नाम नहीं लिया आपने? जी मैंने लिया, फातिमा जहरा साहिबा नाम लिया है। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया शेरी निजामत करने का, मेरे लिए सादत है आपके सामने जी। और इसके साथ पहले हम इजाजत लेंगे, दुआओं में याद रखिए, ढेरों दुआएं हैं सबके लिए, वो लोग जो देख रहे हैं सब जुड़े रहिए और शामिल होते रहिए। हम शायर अदीब इंटरनेशनल की तकरीबात में तो इजाजत तलब करेंगे। अल्लाह एक मिनट फैयाज वर्दी साहब दुआ कराते हैं क्योंकि वो जी आखिर में दुआ की मैं जैसे इनका नाम है फैयाज वर्दक, फैयाज वर्दक नाम है, वर्दिक नहीं है। वर्दक फैयाज हैं वर्दक। दुआइया कलिमात कहेंगे, पहले दुआइया कलिमात कहेंगे फैयाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक हमारे इस काउश को, हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमारी इस इत्तिफाक को कायम रखे। अल्लाह पाक हमारे इस ये जो सरपरस्त है हमारे कामरान साहब है और अपने शिकागो साहब मोहतरम अफजाल साहब डॉक्टर साहब हैं और दीगर जितने दोस्त लोगों को जमा करते हैं, ज़ेबी साहिबा हैं वगैरह जितने भी लोग हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को जमा करना ये मामूली बात नहीं है। सलीम जाफरी साहब कहा करते थे कि एक मुशायरे का इनेकाद 2 बच्चियों की रुखसती के बराबर है। तो अल्लाह पाक हमारे वतन पर और जिन जिन ममालिक में हम मुकीम हैं, अल्लाह उन पर भी अपनी रहमत उनकी बारिश फरमाएं और अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को मोहब्बतों का और अमन का गहवारा बनाए। अल्लाह पाक हमारे दिलों में ऐसे दिए रोशन करे कि हम शायर जो होते हैं वो अपने मुआशरे का चेहरा होता है, शायद अपने मुआशरे का चेहरा होता है और अगर हम खूबसूरत चेहरा लेकर और खूबसूरत ख्यालात और खूबसूरत किरदार लेकर आगे बढ़ेंगे तो मुआशरा हमारी तलकीद करेगा। तो हम मेरे भाई से, अब शायर से, अब शायरा से कि अपने सिर्फ शेरों की हद तक नहीं, अब शेरों की हद तक नहीं, अपने आप में वो चीज भी पैदा करे, वो नूर भी अंदरूनी तौर पर भी पैदा करे कि जिससे ये आप लोग आपसे मुतासिर हो। लोग आज जो शायर जिंदा है गालिब और ये जो लोग जिंदा है, क्यों जिंदा है कि उन्होंने अपने आप को इस तरह पेश किया है कि लोगों ने उनको सुना और माना। तो अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए, अल्लाह पाक हमारे घरों को आबाद रखे, हमारे बच्चों को आबाद रखे, हमारी महफिलों में बरकत अता फरमाए। और आज ये महफिल बखुदा बाबरकत महफिल, क्योंकि ये एक बहुत ही नेक इंसान की महफिल थी और बहुत नेक इंसानों ने इस महफिल का इस्तेमाल किया था। इन्नमल अमालु बिन्नियात, यकीनन नियतों का मुराद जो है वो नियतों का जो है वो अमाल पर होता है। तो चूंकि सब लोग मोहब्बत से आए थे इसलिए कामयाब और खूबसूरत मुशायरा रहा। अल्लाह पाक इस तरह हमें कामयाब और खुश रखे और हमें आबाद रखे, हमारे घरों को हमने सुना है अल्लाह उनको भी आबाद रखे और जो दुनिया में अल्लाह पाक पूरी इंसानियत को आबाद रखे, पूरे इंसानों की पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाए
क्योंकि ये पूरी जमीन हमारे बाबा आदम को अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, और बाबा आदम हम सबके बाप थे और हम सब उसके बच्चे हैं। और मैं जब दुनिया के लोगों को देखता हूं, मैं इटली की और इनके मुशायरों में जब मैं दुनिया के 17 ममालिक के जबानों में मेरी शायरी का हुआ है और बहुत अवार्ड भी देते हैं, तो मैं उनसे भी ये बात कहता हूं कि ये जमीन अल्लाह की तरफ से हमारे बाबा आदम को तोहफा है, और ये जमीन पर पूरे आदम की औलाद का पूरी तरह इसमें हिस्सा है और इस पर हक है। और देखिए कि इसमें इंसानी सूरत में कितने खूबसूरत लोग बसते हैं। अफ्रीका के लोग कितने खूबसूरत है रंग रूप के लिहाज से, ये खलीज के लोग कितने खूबसूरत है, ये अमेरिका के लोग कितने खूबसूरत है, ये चाइना के लोग, ये सारे फूल है और ये जमीन एक गुलदान है। अल्लाह इस जमीन को इसी तरह आबाद रखे। बहुत बहुत एक नाम मैं लेना भूल गई थी, रजिया हुसैन साहिबा का, जो हमारे साथ लिस्ट पे नहीं थी लेकिन हमारे साथ शरीफ हुई। अगर कुछ भी आपको 2 फूल वैसे भी माफ है, कोई बात नहीं। मेरे पास तो बंदूक भी नहीं है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक और सबका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए डॉक्टर अफजल रहमान अफसर साहब का बिलखुसूस शुक्रिया भी और ढेरों दुआएं भी। अल्लाह आपको तजरबत से महफूज रखे और जो आपने पेश किया वो आप में बेमिसाल है, वो कोई नहीं कर सकता। और कामरान भाई ने जिस तरह से किया वो भी जज़ाकल्लाह। मेरी खुशकिस्मती के इसकी निजामत मेरे हिस्से में आई, मैं बहुत अब इसके लिए आप मुबारक हो, मुबारक हो। कामयाब मुशायरे की किताब को आपने उजागर किया और अपने ख्यालात से दुआ कर दिया इस महफिल को, बहुत खूबसूरत। और साहब ने और कामरान साहब ने और जो ये बहनें आई हैं फातिमा ज़ोहरा सीमी बरलास, ये लोग सब दूर से आई हैं, उरूज साहबा पाकिस्तान से और रूही आपा और ताकि साहब नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो भी लोग आए हुए हैं। अब्दुल हकीम साहब उन्होंने भी मेरे लिए तहनीती अशार लिखे, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिए। तमाम लोगों से इजाजत लेते हैं, वो लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी देखेंगे। आप सब भी अपना ख्याल रखिए और ढूंढते रहेंगे हम शोरा को और शायरात को और सजाते रहेंगे महफिलें इसी तरह से आप सबके लिए। हमें नायाब है। कामरान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो बहुत कुछ किया है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। आप बाकी ये कि आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप तकरीबन 4-4.25 घंटे से मुसलसल बैठे हैं। जी, कल भी हमारा मुशायरा था, मैं तो 11-12 बजे रात में अब्बास ताबी साहब आए थे यहाँ पे और मैं भी किसी में बस बहुत बहुत शुक्रिया। काफी देर तक बैठे हैं आप लोग, और खास करके हमारे डॉक्टर तकी हैदर साहब की तो डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और शायरी में भी मसरूफ है। फातिमा ज़हरा जमीन साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सदर साहब आज के फयाज वर्दक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर बेग साहब और प्रोफेसर अहमद हकीम साहब, कामरान साहब। शुक्रिया जो है वो उनका फातिमा ज़हरा जबीर साहिबा का, कि वो अपनी मसरूफियात छोड़कर यहाँ बैठी हुई है, इधर से बैठी है। उन्होंने कहीं जाना भी था मेरे ख्याल में, लेकिन वो नहीं कहीं नहीं। सब निकलेंगे इसके बाद इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे भी शामिल किया। बेइंतहा खूबसूरत नशिस्त थी और बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में, जिसका इब्तिदा भी हुआ और इख्तिताम तक पहुंचे। और खास तौर पे हमारी अजरा बहन जो है, इनकी निजामत को बहुत सारे सलाम और आइंदा भी सुनने को मिलेगी। और फयाज वर्दक साहब से बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई, हमारे अबू धाबी हैं। कामरान भाई से तो पाकिस्तान में मुलाकात हुई है जब मैं जाती हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। उरूस से भी मुलाकात हुई है और होती रहेगी इंशाल्लाह। और शाहीन से तो लास्ट ईयर फ्लोरिडा में मिले और इंशाल्लाह अगले महीने कनाडा में मुलाकात होगी। पाकिस्तान कब आ रही है? बहुत जल्द इंशाल्लाह। जल्दी डॉक्टर अफजल रहमान साहब से अब्दुल मुशाफा तो कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऑनलाइन नहीं। आप वहाँ यहाँ आई थी शिकागो में, वो आबिद रशीद के प्रोग्राम में मुलाकात हुई आपसे? जी, लेकिन ज्यादा गुफ्तगू का मौका नहीं है। आपकी नशिस्त कुछ होगी तो फिर इंशाल्लाह आएंगे और बैठेंगे, फेस टू फेस गुफ्तगू भी करेंगे इंशाल्लाह। आइंदा प्लानिंग के अंदर हमारी शामिल है वो शायदा उरूज की जो तंजीम है, नातिया तंजीम, इसके लिए हम प्रोग्राम तरतीब देंगे इंशाल्लाह, जल्द इसका ऐलान करेंगे।
जरूर इंशाल्लाह शरीफ। अल्लाह हाफिज के मालिक। अल्लाह हाफिज, आबाद रहिए। मैं भी जवाब दे के चार्ज खत्म हो गया है तो मैं इजाजत चाहूंगी। अल्लाह तमाम खुश रहें, सलाम से अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।